آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ تلنگانہ میں انٹیگریٹڈ گروکل اسکولز کی تعمیرات کا آغاز، چیف منسٹر اور وزراء نے رکھا سنگ بنیاد۔ تلنگانہ حکومت کی ایک اور وعدے پر عمل آوری کے لیے پہل، اندرما ہاؤسنگ اسکیم پر عمل آوری کے لیے اقدامات۔ حکومت ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر تمام کو لے کر بڑھ رہی ہے آگے، ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ بھٹی وکرمارکا کا بیان۔ اور کرکٹر محمد سراج نے ڈی ایس پی کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا، ڈائریکٹر جنرل پولیس کو جوائننگ لیٹر حوالے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس کے موقع پر لاؤس کے وزیر اعظم کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے 21ویں آسیان ہندوستان اور 19ویں مشرقی ایشیائی چوٹی کانفرنسوں کی کامیابی سے میزبانی کرنے پر لاؤس کے وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ دونوں وزراء اعظم نے ہندوستان لاؤس تہذیبی اور عصری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر ثمر آور بات چیت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 19ویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس کے موقع پر آج تھائی وزیر اعظم پیٹنگ تارن شیناواترا سے ملاقات کی۔ دونوں وزراء اعظم کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم مودی نے محترمہ شیناواترا کو تھائی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ راجستھان کے سابق چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ رتن ٹاٹا کی شخصیت سے تحریک حاصل کریں اور ان کے اقدار کو اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ گہلوٹ نے جمعہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ مسٹر رتن ٹاٹا کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ ملک بھر کے عام لوگوں کو ان کی موت پر دکھ ہوا۔ بنگلہ دیش میں ستکھیرا میں واقع جشویشوری کالی مندر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 2021 میں ماں کالی کے لیے وقف تاج کی چوری کے واقعے پر ہندوستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا اور حکومت بنگلہ دیش سے تحقیقات کرنے اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ بہت جلد نامزد عہدوں کو پر کیا جائے گا اور 1 مہینے کے اندر پی سی سی کی نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ مجلس کے ساتھ کانگریس کا کوئی اتحاد نہیں ہوا، صرف مجلس کے ساتھ دوستی ہے۔ انہوں نے نامپلی اسمبلی حلقے میں حالیہ دنوں پیش آئے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے درخواست کی کہ فیروز خان کے معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، غلطی چاہے ہمارے لوگ کریں یا کوئی اور، قانونی طور پر کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دسہرے تک نامزد عہدے اعلان کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن ہریانہ اور جموں کشمیر کے انتخابات کی وجہ سے دسہرے تک نامزد عہدوں پر تقررات ممکن نہیں ہو سکے۔ حیدرآباد کے نمائش میدان نامپلی میں نوراتری تقریبات کے دوران درگا پوجا پنڈال میں نصب مورتی کو نقصان پہنچا ہوا پایا گیا۔ پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی کہ آیا کسی شرپسند کی جان بوجھ کر کی گئی حرکت ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ نامعلوم افراد نے پنڈال میں چندے کے ڈبے کو چھیڑا، جس کے نتیجے میں دیوی درگا کی مورتی کو نقصان پہنچا۔ پنڈال کے منتظمین نے بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ اشرار کا پتہ چلایا جا سکے۔
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 के उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स की इजराई से मुताल्लिक ऐलान कर दिया है। ग्रुप 3 के इम्तिहानात जो 17 और 18 नवंबर को मुनक्किद होने वाले हैं, इनके हॉल टिकट्स 10 नवंबर से जारी किए जाएंगे। ग्रुप 3 के इम्तिहानात में जुमला 3 पर्चे होंगे। 17 नवंबर की सुबह जनरल स्टडीज़ का इम्तिहान होगा। दोपहर के वक्त हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का इम्तिहान लिया जाएगा। 18 नवंबर को इकनॉमी एंड डेवलपमेंट से मुताल्लिक इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान के लिए OMR शीट कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब रखी गई है। इसी तरह हॉल टिकट्स के हवाले से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी TSPSC ने जारी किए हैं। याद रहे कि 30 सितंबर 2022 को ग्रुप 3 की 13,375 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने शादनगर असेंबली हलके के कोंडुर्गु में इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे में शिरकत करते हुए उन्होंने खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम गरीब तलबा को कॉरपोरेट सतह की तालीम फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम फराहम करने के लिए इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स के मंसूबे तैयार किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि हर स्कूल 150 एकड़ अराजी पर तामीर होगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और खुसूसी तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड कायम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का आगाज 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना में महकमे तालीमात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए तकर्रुरात किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि आर्टिकल 370 के मामले में कोई नज़रसानी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 साल दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आलमी सतह पर मजबूत हुआ है। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में ही मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में तामीरात सामने आईं। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इन लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करे जो 40 साल से वहाँ रिहाइश पजीर हैं। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मूसा नदी के अतराफ अमीर लोग नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के घरों को गिराने से पहले उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम गंदे नालों का निज़ाम मूसा नदी में ही मिलता है, इसलिए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट कैसे मुमकिन होगा। नलगोंडा जिले के चिट्टियाल मंडल में एक सड़क हादसा पेश आया, जिससे कौमी शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम हो गई। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर तेज़ रफ्तार लारी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में लारी में मौजूद डीजल टैंकर फट पड़ा और आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर बाहर छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, जबकि लारी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियां काफ़ी दूर तक खड़ी देखी गईं। గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఏం లోడ్ అది ఏడి నుంచి వస్తుంది? సిమెంట్ కోదాడ నుంచి వస్తుంది. సిమెంట్ ఎటు పోతుంది? హైదరాబాద్. దేనివల్ల అయిందా మరి? మల్లంపేట పోవాలి, మల్లంపేట మరి అయిపోయింది బండి। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में 28 इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखा गया है, जिसके ज़रिए हुकूमत रियासत में तालीम को फ़रोग़ और मयारी तालीम की सरबराही में अपने असली मकासद के लिए काम कर रही है। वज़ीर मौसूफ श्रीनिवास रेड्डी ने जुमा को खम्मम रूरल मंडल पुनकियाल में इंटीग्रेटेड स्कूल के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 657 करोड़ रुपए से अम्मा आदर्श पाठशाला प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल्स में 3 माह में बुनियादी सलाहियतें फराहम की। वज़ीर ने कहा कि पिछली हुकूमत ने 10 साल में आवाम के लिए कुछ नहीं किया और वो हर महाज में नाकाम साबित हुई है। तेलंगाना हुकूमत एक और इंतखाबी वादे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस की 6 जमानतों में शामिल गरीबों को इंदिरमा मकानात अलाट करने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने अहम फैसला लिया है। इंदिरमा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान की शनाख्त के लिए कमेटियां कायम करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने इस खुसूस में जुमा को एक जियो जारी किया। जियो के मुताबिक इन कमेटियों को पंचायतों और म्यूनसिपल वार्ड सतह पर कायम किया जाएगा। गांव की सतह पर सरपंच या स्पेशल ऑफिसर कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि म्यूनसिपल सतह पर काउंसलर या कारपोरेटर चेयरमैन होंगे।
इंद्रम्मा हाउसिंग सोसाइटी के कन्वीनर के तौर पर हर पंचायत सेक्रेटरी या वार्ड ऑफिसर होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत जात पात और मजहब से बालातर होकर सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। वो खम्मम जिले के लक्ष्मीपुरम में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड गुरुकुल स्कूल की संग बुनियाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम तबकात के लिए मेयारी तालीम का आगाज किया गया है। हुकूमत तालीम और सेहत को इंतहाई अहमियत दे रही है और तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तुलबा को दुनिया के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाया जा रहा है। इस साल इंटीग्रेटेड गुरुकुल स्कूल्स पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने पुलिस के डीएसपी की हैसियत से आज डीजीपी ऑफिस में अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। उन्होंने रियासती डीजीपी जितेंद्र से मुलाकात करते हुए ज्वाइनिंग लेटर हवाले किया। इस मौके पर सिराज ने रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को ज़मीन और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। इस साल अगस्त में जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर 600 मुरबा गज ज़मीन सिराज को अलाट करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अहकामात जारी किए थे। हाल ही में सिराज को डीएसपी की पोस्ट भी दी गई थी। तेलंगाना में इंटीग्रेटेड गुरुकुल स्कूल्स की तामीरात का आगाज, चीफ मिनिस्टर और वुज़रा ने रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना हुकूमत की एक और वादे पर अमल आवरी के लिए पहल, इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम पर अमल आवरी के लिए इक़दामात। हुकूमत जात पात और मजहब से बालातर होकर तमाम को लेकर बढ़ रही है आगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का का बयान। और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने डीएसपी की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया, डायरेक्टर जनरल पुलिस को ज्वाइनिंग लेटर हवाले। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।